Am I audible now? Yes, sir. Thank you. Okay. So, what would be the medium you want? Is it English or it can be Hindi or mix? We audience can Mixed language will do. mix language. So, who all are the audience? May I know the audience? The college people or the people from Hindi? Somebody said Hindi. Okay. So I'll try to mix it with Hindi, English both. We'll try to be lucrative enough to people can understand. But something would be also in English because some preparatory work is being done in English. So let me share my screen first. I'll try to make it interactive also. Wait. Can you make me enable me as a presenter, please? Yes, sir. You can share your screen. It's already done. No, it says host disabled participate screen sharing. So you have to make me. Do it now, sir. Yeah, it's able to see my screen, right? Yes, sir. Okay. So before we start, I'll run one video to make it more interactive. Okay. Audio is not coming. Please say. So we are not getting the video audio. Okay, you're not. Just a sec. You're not able to see the video. We are able to see video but not able to hear the audio of video. Okay. Might be Able mute or While sharing the screen, there is an option to. I don't know. what do you say while sharing option? Because I've made it audio, enabled. So while sharing the screen, there is an option that you want to share the video, then voice only go to the viewer. So if you click on the share screen, you might get that option somewhere. Let me do it again. We. Is it audible now? What do we understand? We need an intelligent machine which has the power to think, अब आ रहा है आवाज? आ रहा है सर. ठीक है फिर से शुरू से मैं कर analyze and make artificial intelligence the next big thing. But why do we need AI? Here is Alan lying in his grave. Let's go back into time and see what happened. Alan met with a major accident because of driving back home drunk, along with 10,265 other people the same year. Every year this number is increasing. Can we have cars that can drive on its own, that can save people like Alan? Jack is blind. He wishes for a device that could help him to see the world. Meet Olivia. She is visiting Berlin. She cannot understand German signboards. She wishes for a software that can convert those German boards in English. Looking at all the scenarios, what do we understand? We need an intelligent machine, which has the power to think, analyze, and make decisions. This is nothing but artificial intelligence. The basic idea is to mimic a human brain inside a machine. For example, if we want a car to drive on its own, we need to train that car based on driver's experience. With AI, people like Alan can sit comfortably in a self-driving car and reach home safely. You will be amazed to know the advancements that have been made in this field. AI has also helped people like Jack. Orcam's MyEye is a small wearable device that has the ability to read printed text from any surface. The device also recognizes faces of individuals as well as identifies products and denominations on currency notes.
For Olivia, we have AI-enabled mobile apps that can extract the text from an image and convert it into a different language. Artificial intelligence is not only saving our lives or making it comfortable, but it is also contributing in the field of art. Meet Aaron, the famous painter, which is a computer program. Aaron is able to create very unique and exquisite paintings. AI softwares are even composing music. AI has given us Wordsmith, which can create a unique story for you. It writes articles in newspapers and on internet. We even have Sherlock, an intelligent tutoring system teaching Air Force technicians how to diagnose electrical problems in aircrafts. So clearly, after internet, which has connected the entire world, and microchips without which modern humans cannot survive, AI is the next big thing that is revolutionizing the world. Yeah. So, so I hope you've seen that informative video. How AI is dynamically changing. It's the purpose of AI is not just problem solving. It has to be beneficial with respect to ह्यूमन लाइफ, कि हमारे जिंदगी को भी बचा पाए, ये हमारे जीवन को और आसान कर पाए. सो दैट इज द प्राइम रीजन वी आर इवॉल्विंग. हम इसको उस तरह से इवॉल्व करना चाह रहे हैं. तो अब इस सेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे. क्या ये करता है, कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिमिलर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, क्या हम उसे समझ पाते हैं कि नहीं. आज के वर्ल्ड में ये भी बहुत लेवल ऑफ चैलेंजेस है कि हर चीज को लोग एआई बोलने लग जाते हैं. समटाइम्स इट इज नॉट ए एआई. तो हम इस मैं प्रेजेंटेशन, आई होप माय प्रेजेंटेशन इज आल्सो विजिबल, राइट? दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन? Yes, sir, it's visible there. ओके. तो आज के सेशन में हम जानेंगे क्या है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस है, तो हम कैसे इवोल्यूशन हम समझेंगे कि ये कैसे इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल होंगे, उनके सबसेट क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, और इन दोनों के मैरिज से हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं. और एक रियल लाइफ डेमो देंगे जो कि हम हमारी कंपनी ने इन पार्टनर विथ माइक्रोसॉफ्ट के हम काम कर रहे हैं. वो भी हम आपको एक स्निपेट्स बताएंगे जिससे आपको थोड़ा सा एक हाई लेवल ऑफ आइडिया जनरेट हो. सो नाउ देर आर, मैं इसको थोड़ा सा डायलॉग, दो वे कम्युनिकेशन भी बनाना चाहूंगा एक हद तक. अभी आपको दिख रहा होगा 4 स्क्रीन. सो कोई बता सकता है क्या स्मार्ट सिटीज एआई है? No. नहीं, किसी ने बोला नो. सो क्या है ये? Connectivity through Wi-Fi and Slack. हाँ, नहीं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है. और कोई? Digital. डिजिटल तो हर चीज ही है. डिजिटल आज की दुनिया में हर चीज डिजिटल है. सॉफ्टवेयर, wherever there is software, everything is digital. तो सॉफ्टवेयर है तो डिजिटल तो होगा ही. हेलो सर, आपका क्वेश्चन है क्या एआई है? क्या बोल रहे हैं? आपका क्वेश्चन ये है ना सर कि स्मार्ट सिटी एआई है कि नहीं? है कि नहीं, वही. नहीं सर. नहीं, दैट्स करेक्ट आंसर. स्मार्ट सिटी जब हम बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हम एआई बन करके बनाएंगे. लेवरेज किया जा सकता है, बट सिमिलर पैरेलल टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने नाम सुना होगा, विच इज डिवाइस कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, विच इज कॉल्ड आईओटी. हम नाम सुने होंगे, आईओटी. तो स्मार्ट सिटीज जितने भी चीजें काम करती है प्रीडिनोमिनेटली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करती है. तो आपको समझ में आइडिया ये देना चाह रहे हैं कि आपको समझ में आए एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज क्या डिफरेंट. जब आप एआई बोलेंगे तो आप मिक्स ना कर. तो अगर घर खुल जा रहा है ऑटोमेटिकली, घर घुसने से पहले आप एसी ऑन कर पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, ये सब एआई नहीं है. दीज आर ऑल इंटरनेट ड्रिवन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट IoT devices related technologies. Second one is virtual game. क्या ये AI है?
No. Yes, correct. That's also answer is correct. ये वर्चुअल गेम इज वर्चुअल रियलिटी है. रियलिटी को एक ग्राफिक्स के लेवल पे ले जाके ऑग्यूमेंट नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, वो वर्चुअल रियलिटी. अगेन ये एआई नहीं है. हम इसको एआई से बेटर आउट कर सकते हैं, बट प्रीडिनोमिनेटली ये भी एआई नहीं. तो ये समझने की, आप अगर एआई चूज करेंगे तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत है. एआई क्या है, क्यों है, क्या डिफरेंट है. तो उस पर से नेक्स्ट थर्ड वन इज ये. आपको एक और इमेज दिखा, ये सॉरी, ये वर्चुअल यूनिवर्स, ये क्या एआई है? नहीं ये नहीं. कोई बता सकता है क्या है ये? Just like a meta virtual. Virtual 100% करेक्ट, करेक्ट. इट्स ये मेटावर्स, इट्स काइंड ऑफ आपको एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाता है. अगेन इसमें ग्राफिक डिजाइनर और मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. एआई से हम इसको और परफेक्ट ऑग्यूमेंटेड सेल्फ जनरेटिव बना सकते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली ये भी एआई. लास्ट वन इज एनहांसिंग यूनिवर्स. क्या ये एआई है? Yes, and it's AI. डिटेक्ट कर रहा है ये एआई है. हाँ, कुछ हद तक एआई है, बट ये भी एआई प्योर नहीं है. एआई, दिस इज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. ऊपर वाला वर्चुअल रियलिटी था, नीचे वाला ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. कि आप रियलिटी स्पेस में, आप ऐप के थ्रू या वेरियस मीडियम आपको और इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आपके रियलिटी को और ये ऑग्यूमेंट कर दे रहा है कि यह दुकान है, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ वो होगा. दैट्स नॉट नॉट ऑल्सो एन एआई. आप समझिए, आपको जो चीज लग रहा है, बहुत चीजें एआई, मतलब बहुत लोगों को वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में जा रहा होगा. दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर. नो नीड टू राइट इट डाउन. आप समझने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रखिए. यू विल लर्न समथिंग आउट. आई होप आई विल मेक यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. तो आप देखिए, चार डिफरेंट, और पांचवा हम डिस्कस करने जाएंगे, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आईओटी इज नॉट अ एआई. Virtual reality is not a AI. Metaverse is not an AI. Augmented reality is not an AI. AI can be taken to augment it further, but predominantly ये AI नहीं है. तो अब AI है क्या? हाँ, बोलिए बोलिए. Virtual reality and augmented reality. दोनों में क्या अंतर है? वर्चुअल रियलिटी मतलब आप जो देखना चाह रहे हैं उसको, लेट्स से कि आप एक वीडियो से किसी दूर बैठे लोगों को उसके ग्राफिक्स पिक्टोरिकल जनरेट कर करके हम बात कर पा रहे हैं, या हम किसी एक टूर को विजुअलाइज करके, जैसे आप कहीं कहीं पे बहुत से मॉल में जाएंगे, वीआर मतलब एआर वीआर बहुत मिक्स होता है. वैसे जा करके हम ऐसे दिखाएगा कि हम रोलर कोस्टर पे चल रहे हैं, राइट. आपको वैसी फील आएगी, आपको दिखेगा कि आप उसी यूनिवर्स में आ गए. और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है कि आपके जो नियर अबाउट सिनेरियोस हैं उसको ऑग्यूमेंट कर देना. जैसे कि आपके पास ऐप है उस, या इवन द कैमरा ड्रिवन, आपके बहुत सारे कार में अभी भी चीजें लगी रहती हैं जो कि ये क्या बताती है कि में रोड ब्रेकर है, या सेंसर लगी होती है. दीज आर पार्ट ऑफ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी. मतलब आपके रियलिटी को और एनहांस कर देना. एआई लगेगा, एआई से थोड़ा सा हम इसको और बेटर आउट कर देते हैं, बट एआर वीआर इज लाइक दैट ओनली. ओके, नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस वर्ड है इसमें. तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस मीन्स somebody can interact. हम all human beings are intelligent, right? why because हम बात कर सकते हैं, हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं, हम सीख के नेक्स्ट लेवल ऑफ इवॉल्व हो सकते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव रख सकते हैं, हम अपने थॉट कन्वे कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ और कर सकते हैं, हम राइट डिसीजन ले सकते हैं, जो कि हमें ना भी पता हो. सिचुएशन बेस्ड गाइडेंस लेकर हम खुद ही इवॉल्व हो करके वो डिसीजन ले सकते हैं. तो ये चीजें जो है वो हमें इंटेलिजेंस बनाता है, लाइक.
तो वो इंटेलिजेंस बनाता है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ती है फिर? जब हम खुद ही इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल क्यों पड़ती है? एनीवन? सेम लाइक टू मेक द ह्यूमन, लाइक से कि जैसा आपने बोला इंटेलिजेंस, तो एज ए ह्यूमन हम और आप इंटेलिजेंट हैं, हमने सीखा है उस चीज को, हम हिंदी समझ रहे हैं, हम इंग्लिश समझ रहे हैं, लेकिन मशीन इस चीज को नहीं जानता है। तो आर्टिफिशियल मतलब बनाया हुआ चीज, कैसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये नेचुरल फ्लावर है, तो आर्टिफिशियल इसको ह्यूमन बनाया है। तो वैसा इंटेलिजेंस जिसको ह्यूमन ने बनाया है और मशीन को दिया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ तक तो मैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे अगर मशीन मेरा इंग्लिश समझ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको पता नहीं इंग्लिश क्या होता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग पास ब्रेन है, हम उस चीज को सीखते हैं, लेकिन मशीन को उस चीज सिखाया गया है ह्यूमन के द्वारा, इसलिए उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये नहीं, तो बहुत है। अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। दो चीजें हैं इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। इन हमारे पास उतने डेटा प्रोसेस करने की कैपेसिटी एज ए ह्यूमन टाइम नहीं है, विच वी कैन लेवरेज थ्रू मशीन्स, राइट? तो मशीन हमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी दे देता है। मशीन हमें वो सब चीजें भी प्रोवाइड कर देता है जो कि हम एज ए ह्यूमन को सेल्फ ड्रिवन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब वो प्रोसेसिंग, उतना प्रोसेसर हमारा हेलो, somebody is saying something. Like humans have limitation, but the machines does not have that limitation. And the only difference is the data intelligence and the processing intelligence. So any non-living things doing the intelligence work is a artificial intelligence. क्या मतलब मशीन के थ्रू करना, वो सिर्फ वर्क फ्लो डिफाइन कर लेता है, ऑटोमेटेड चैटेड रिस्पॉन्स दे देता है, ये सब सारे कैटेगरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट हो जाते हैं। मतलब जो नॉन लिविंग, लिविंग एज इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन ड्रिवन, डेटा ड्रिवन, पिक्चर्स ड्रिवन, वर्क फ्लो ड्रिवन, इस टाइप की चीजें जो भी होंगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट व्हाई वी नीड इट? हम क्यों नहीं कर सकते कि हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा तेजी से कर पाए, मतलब कि एफर्ट हमारा बच जाता है। सोसाइटी, मतलब आप जा रहे हैं, कार से टक्कर होने से बचा पाए, सोसाइटी की हेल्प कर देता है। क्रिएटिविटी, मतलब हम वॉइस रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उसके बेसिस पे एक पैटर्न जनरेट करके में क्रिएटिविटी मिल जाती है। बहुत डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि हम ह्यूमन को टाइम लगेगा उतने इवॉल्व, ये मशीन खुद से लर्न करके कर सकती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, जो आपने सुना होगा आजकल मैनुअल क्लर्क ड्रिवन काम कम होता जा रहा है, चैट जीपीटी जैसे चीजों के आने से, जो कि सेल्फ जनरेटिव होता है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और सेल्फ सस्टेनिंग रिस्पॉन्स दे देता है, जो कि गुड इनफ देन ह्यूमन, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन। यू कैन ऑगमेंट इट, करेक्ट इट, इट गिव्स आपको एक लेवल ऑफ सैनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए दे देता है, और ओवरऑल ये कॉस्ट बचाता है। अब हम इसके सबसेट्स के बारे में जानेंगे, कितने क्या सबसेट्स होते हैं, क्यों, क्या है वो। तो इसके टिपिकली 5 कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज कैन बी डिफरेंट, मेनी वर्जन यू सी द केस के स्टिल बाइफर्केशन है, कहीं न्यूरल डीप एक जैसे अलग अलग है, कहीं एक जैसे, बट इन टोटलिटी वी डिफाइन इट इन 5 सबसेट्स। पहला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या हुआ? जो मशीन लर्न कर रहा है खुद से, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन मोरलेस नहीं है, जो डेटा उसको मिल रहा है, उस डेटा के बेसिस पे वो डिसीजन ले पा रहा है, दैट इज अ मशीन लर्निंग। एंड वो डेटा एज अ क्यू फॉर अ फ्यूचर डेटा ऑल्सो। आज लेट्स से कि आपके पास 10,000 डेटा है, आपने कुछ इंटेलिजेंस जनरेट करा, अब कल को वो 15,000 डेटा होता है, इस इंटेलिजेंस प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसको वैलिडेट करता है सबसे, एंड इसके बेसिस पे जो मोर एक्यूरेट इन्फ्रेंस निकाल करके इंटेलिजेंस निकालता है, दैट वुड बी अगेन इट्स अ रिकर्सिव रेपिटेटिव इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस इसकी बढ़ती चली जाती है, तो दैट इज अ मशीन लर्निंग होती है। Second one is neural network, or we call sometimes also we call a deep learning based artificial intelligence. Neural network, जो वर्ड ऐसे ही कहता है, न्यूरल मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है। न्यूरॉन से रिलेटेड अगर चीजें हैं, इसका मतलब क्या आपका ह्यूमन टच।
तो वैसे चीजें जो कि हमारे ह्यूमन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो कि ह्यूमन डेटा की तरह बिहेव करे और ह्यूमन पर्सपेक्टिव में रिस्पॉन्स दे, डीप लर्निंग की तरह, कि हम ये नहीं हो सकता तो ये हटा दो, ये आगे बढ़ो, मतलब डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स, एंड आगे बढ़ते जाके वो और सही हमें इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर, जैसे हम करते हैं कि यार ये पहले नेग्लेक्ट कर ले, फॉल्स ट्रूथ पहले ही नहीं हटा देते हैं। तो ह्यूमन की तरह न्यूरल ब्रेन जैसे अपना काम करता है, उस तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम अगर होगी, तो दैट इंटायर टेक्नोलॉजी एंड स्टडीज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। इसके बहुत डिफरेंट अल्गोज होते हैं, उतने डीप में नहीं जाएंगे। एमएलपी, सीएनएन, आरएनएन, इसकी एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि इस पे ही सिर्फ काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज ए कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या मतलब, जैसे कि ह्यूमन जिस तरह से किसी भी पिक्टोरिकल स्टफ को देखता है, उस तरह से कंप्यूटर जो है, क्या वो उस तरह से देख पा करके और समझ के एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जनरेट कर पा रहा है। सो दैट काइंड ऑफ स्टडी, इफ वी आर लर्निंग, अगर वो पर्सपेक्टिव अगर किसी भी इंटेलिजेंस से इन्फ्लुएंस होता है, दैट एआई इज नोन एज कंप्यूटर विजन। पिक्टोरिकल प्राइमरी, जो हम देख के समझ के डिसीजन ले रहे हैं कि ये है, ये चल रहा है, 10 कुत्ते हैं तो उसमें से एक डिफरेंट ब्रीड है, तो ये लेब्राडॉग है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो विजन पर से हो जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपको जैसे बता रहा है, वर्ड ही बता रहा है इसमें। नेचुरल लैंग्वेज क्या है, हमारे हम जो बोलते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। ऑल स्पीच टेक्नोलॉजीज आर नेचुरल लैंग्वेज। तो अगर आप कोई टेक्स्ट को एक स्पीच में, ह्यूमन स्पीच में ट्रांसफॉर्म कर पाए, उस टाइप की चीजें इज ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, किसी फीमेल मेल के बेसिस पे एक ऑडियो वीडियो जनरेट कर पाए, या वाइस वर्सा आप रिवर्स भी कर पाएंगे, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन इज डिफरेंट। बट अगर ऑडियो और वीडियो ड्रिवन को आप ट्रांसक्राइब करके, system used in NLP. क्या बोल रहे हैं? Sir, face recognition system used in NLP. Sir, face करेक्ट, recognition system. या Face दैट्स ऑल। recognition. Face recognition also uses NLP में sir. NLP, that's correct. Because it sees the behavior कि आप बोलते हैं, आपके आईज के वो सब के क्या है, तो वो सब में NLP भी यूज होता है, which is perfect, आपने जो बोला है। एंड लास्ट वन इज स्पीच रिकॉग्निशन, लाइक कि हमारे पैटर्न, हर आदमी का एक टोन ऑफ वॉइस सेगमेंट्स डिफरेंट होता है, उसकी चार्टिंग डिफरेंट होती है, तो उसके बेसिस पे आप आजकल तो स्पीच रिकॉग्निशन के बेसिस पे विथ एनएलपी नाउ आप किसी के भी गाना किसी दूसरे एक्टर और सिंगर्स के गाने में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, आपको 100% नेचुरल लगेगा। सो दीज काइंड ऑफ various subsets are being used to evolve the next generation of AI and तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग जो हमने ऑलरेडी इनिशियली बात कर ली कि वो जो कि कंप्यूटर्स को और मशीन्स को, नॉट ट्रूली कंप्यूटर्स ओनली, लाइक सेंसर्स, प्रोसेसर्स को इंफॉर्मेशन फीड करे, और वो आइटरेटिव लर्निंग के बेसिस पे ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस हर बार निकालते जाए और अपने जो एंट्रोपी है उसको बढ़ाते चला जाए, मतलब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और प्यूरिफाई कर पाए, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस निकाल पाए एंड रिजल्ट में डाल पाए उसको। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। वर्ड वही बोल रहा है कि मशीन ड्रिवन, जो भी डेटा हम उसको देंगे या वो जो डेटा वो कैप्चर कर रहा है मशीन, उसके बेसिस पे सेल्फ लर्निंग कर रहा है। इसके भी 3 कैटेगरीज होते हैं, वन इज सुपरवाइज्ड, सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज्ड एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्स्ड। तो देखिए आगे मैं बता, सुपरवाइज्ड जैसे वर्ड ऑलरेडी बोल रहा है कि सुपरवाइज्ड है, इसका मतलब डेटा उसको हमने पहले ही बता दिया है कि ये सेट ऑफ डेटा है और इसका मतलब ये है, तुम्हें जहां भी दिखे तुम उसको इस तरह से अप्लाई करो। जस्ट एग्जांपल, मैं लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने सिस्टम को बता रखा है कि भाई ये 10 तरह के कुत्तों के ब्रीड्स हैं, ठीक है, और इसमें से ये जब भी आए तो तुम इसको लेब्राडोग समझ लो, पेमेरियन समझ लो, तो वो टाइप के, या इवन
इंटेलिजेंस वैसे जहाँ पे फिल्टर होता है कि अच्छा है, खराब है, बहुत अच्छा है, उस टाइप के फिल्टर्स करने के लिए, तो उन सब टाइप में जो डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज सुपरवाइज्ड, वेयर द डेटा वी प्रोवाइड डेटा फीड्स वेक्टर्स, उसके बेसिस पे अपना वो और ऑप्टिमाइज करके डिसीजन ले पाए। इसके अल्गोस डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, वेक्टर्स ड्रिवन, न्यूरल नेटवर्क ड्रिवन, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें भी फर्दर दो डिफरेंट तरह के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, सब क्लासिफिकेशन बोलिए, विच इज कॉल्ड, वन इज क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में कि आपके पास y इज इक्वल टू mx+c काइंड ऑफ एक फंक्शन जो डिफाइन करे कि ये है तो यही रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो उस टाइप को हम बोलते हैं क्लासिफाइड। हमने बोल रखा है कि यार ये है तो यही बताना, क्लासिफाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको कुत्ते वाला एग्जांपल दिया तो क्लासिफाइड हो गया। या फैक्ट्रीज में हम लगाते हैं ऐसे ML ड्रिवन प्रोसेसर, वी कैन सेग्रीगेट, अलग कर पाए एक टाइप की चीजें, तो उस टाइम में हम क्लासिफाइड ड्रिवन ML यूज करते हैं। सेकेंड वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि वो मतलब क्लासिफिकेशन का एक ऑग्यूमेंटेड वे, वेयर इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि अभी जितने डेटा सेट्स हैं, अब इसके आगे ये जाएगा, इसके बाद ये खराब होगा। तो ये मशीन लर्निंग हम टिपिकली कोई भी इंटेलिजेंस जो कि हमें प्रिडिक्ट करके सेव गार्ड करे या बताए कि इसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बाद गाड़ी टक्कर लग सकता है क्योंकि आप इतने क्लोज आ चुके हैं, के बगल में आ गया है तो कोई ना कोई धक्का मार देगा, सेंसर बोलने लगेगा ऑटोमेटिक। तो वो उस टाइप की रिग्रेशन बेस्ड नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिडिक्शन के बाद डिसीजन अगर लेगा, दैट वुड बी अ रिग्रेशन ड्रिवन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सेकेंड इज अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज मतलब कि कोई भी हमने गाइडेड डेटा नहीं दे रखी है, इसमें हम कुछ बता नहीं रखे हैं, डेटा लेक है, मतलब बहुत सारे डेटा है और डेटा जनरेट भी हो रही है, कोई हिस्टोरिकल नहीं है। उसमें हम हिस्टोरिकल से इवन मैप कर सकते थे कि ये मुझे मिला है तो इसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस रखो, यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द गूगल सर्च आर अनसुपरवाइज्ड, आप जो भी करते हैं वो अनसुपरवाइज्ड होता है। उनके पास हिस्टोरिकल डेटा ऑल्दो होता है, बट एवरीथिंग इट इज जनरेटिंग, पैटर्न इज रन टाइम पे जनरेट होता है और वो रन टाइम पे ट्रेंड्स भी जनरेट करते रहते हैं। तो ये सब टाइप की चीजें होती है, दैट्स अनसुपरवाइज, क्योंकि कोई रहता नहीं बताने के लिए, हर के क्वेरीज अलग है, हर के आस्क अलग है, तो उस हिसाब से जो क्वेरी देगा वो रन टाइम पे अनसुपरवाइज बेस में जो भी डेटा आ रहा है और जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। इसके फर्दर तीन सब टाइप होते हैं, क्लस्टर, एसोसिएशन एंड रीइंफोर्स। क्लस्टर मतलब आप स्टैट्स पढ़े होंगे, तो एक हम स्ट्रेटा या छोटे पूल को डिफाइन करते हैं, उस स्ट्रेटा के बेसिस पे प्रिडिक्शन सम करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं पूरे पॉपुलेशन सेट पे। तो इसके भी अल्गोस, हम इसके एक आपको इवन POC जो हम कर रहे हैं उसका हम एग्जांपल भी लाइव, जो कि हम लाइव नहीं मतलब प्रेजेंटेशन में भी हम डेटा के साथ दिखाएंगे आपको कि उसमें हम KNN कैसे यूज करके अपन उसमें KNN यूज किया हमने। सेकेंड वन इज एसोसिएशन बेस्ड विच इज रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब कि अगर मैं इसका भी एग्जांपल, इस पे भी हम काम कर रहे हैं जहाँ की हम हमारा मतलब जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, एग्जीबिशन करती है। उनको चाहिए कि हमारे जितने भी एग्जीबिशन होते हैं किस प्रोडक्ट पे लोग रुकते हैं, किस पे देखते हैं, वो आप मुझे रन टाइम पे दीजिए। अगर मेरा नहीं होगा, अगर लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप बताइए आदमी कितना आ रहा है रन टाइम पे, तो हम इस पे एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जर्मन क्लाइंट के साथ, एसोसिएशन बेस्ड उस पे, जिसपे हम एग्जीबिशन में रन टाइम पे जितने भी कैमरास लगे होंगे वो पैटर्न देखेगा कि आज कितने आदमी किस स्टॉल पे आ रहा है, किस तरफ देख रहा है, वो मेल है फीमेल है, क्या वो हमारा टारगेट हो सकता है एज अ पॉसिबल कस्टमर। वो सब इंफ्रेंस हम उसको रूल बेस्ड बना करके उसको देंगे, बट इट्स मशीन इंटेलिजेंस। पता नहीं, क्योंकि डेटा पता नहीं होता है, हर चीज हमें फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या वो उसी डायरेक्शन में देख रहा है, उसी सेट पे देख रहा है, उसी ब्रैकेट में देख रहा है जहाँ उस तरह का स्पेसिफिक सामान है। लेट्स से कि
कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें बेचना है, या उस तरफ उस ब्लॉक में वो देख रहा है कि नहीं। इस टाइप के इन्फ्रेंस देख करके हम उसको और इंटेलिजेंस बना के एक इन्फ्रेंस कस्टमर को देते हैं, जो एग्जीबिशन चलाते हैं, से उनको नेक्स्ट टाइम या उस टाइम में भी एक प्रोस्पेक्ट का बहुत ही फेयर आइडिया आ जाता है, विच इज यूनिक इन दिस फर्स्ट टाइम वी आर बिल्डिंग कहीं भी। थर्ड वन इज री वन। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें री ही मिक्स्ड है। री क्या, एक की होती है गेमिफिकेशन। आई होप यू ऑल नो कि गेमिफिकेशन क्या होता है, पता है राइट? गेमिफिकेशन एनीवन? नहीं पता है। देखिए, आप कहीं भी कुछ भी खरीद रहे होंगे, जैसे इवन पेटीएम में कुछ यूज कर रहे होंगे, या आप अमेजोन में कुछ खरीद रहे होंगे, फ्लिपकार्ट में कुछ खरीद रहे होंगे, तो वो कुछ पॉइंट्स या कुछ आपको रिवॉर्ड्स देता है, राइट? वो रिवॉर्ड्स देता है, कैसे देता है? क्योंकि उसके पैटर्न है, उसके गेम है कि आपने ये खरीद लिया, ये मिले, आपने लोकल शॉप पे खरीद लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया, तो आपको कुछ रिवॉर्ड दे देता है वो। तो ये जो भी चीजें लीनियर बेस में आपको पता है कि मैं कुछ कर दूंगा तो कुछ मिलेगा, या कुछ मैं अमेजोन में करूंगा तो मुझे इतने कॉइन मिल जाएंगे या इतने पॉइंट मिल जाएंगे, ये एक गेमिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसको अगर हमें डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हमें पता है कि किसी को ल्योर करना है, तो वहां हम गेमिफिकेशन थ्योरी लगाते हैं। ये देंगे तो इतने पॉइंट्स देंगे, इतने इस टाइप के होगा तो इतना पॉइंट्स दे देंगे, या इतने स्क्रैच का कूपन दे देंगे। इस टाइप के पहले एरिया बेस्ड कस्टमर है तो इसको हम इतने रिवॉर्ड दे देंगे, तो वो 10 लोगों को बताएगा। या इसको हम जाके थोड़ा सामान कम कर देंगे और उसके बेसिस में उसको ज्यादा रिवॉर्ड दे देंगे, तो 10 फ्रेंड्स को बताएगा। दिस काइंड ऑफ स्टफ इज अ गेमिफिकेशन। तो री में हम क्या करते हैं, गेमिफिकेशन को भी एक नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, जिसमें कि हम बताते नहीं है कि क्या चल रहा है, बट यू विल बी रिवॉर्डेड। मैं आपको जब जो पीओसी हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, मतलब थ्रू पार्टनर चैनल यूके, वो हम उसी पे बना रहे हैं जिसमें कि यूजर को पता ही नहीं चलता उसको रिवॉर्ड क्यों मिल गया। तो वो बहुत इंक्विजिटिव हो जाता है, यार मुझे कैसे मिल गया। नॉर्मल में तो उसको पता है कि मैं खरीदूंगा या मैं ये कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा पॉइंट, और मैं जितना भी ये करूंगा तो वो मिल जाएगा। तो दैट्स अ रीइंफोर्समेंट। ओके। टेक्नोलॉजीज बहुत सारे हैं, बट ये प्राइमरली ये टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज में आते हैं। इफ यू आर गुड विद पाइथन, पाइटॉर्च, मैटलैब, K9, आर आर बहुत इजी है यूज करना भी, नोड, एक्सेल एंड सो ऑन। देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज वी कैन यूज इट। On the top of that, there are many algos, KNN, SNN, MLP, RNN. So algos with modeling, these will provide you modeling and scripting languages, which help you to augment into the next level. Okay. एक ये मैं वीडियो चला रहा हूँ, मतलब देखिए क्या कितने फास्ट से अब हम उस पे जाएंगे, जनरेट हो रहा है। ये लास्ट ईयर का है, 20 साल रियलिटी में लगा है। एक साल के अंदर कितना इवॉल्व हो गया। इसमें पिछले साल का था, अर्ली फेब ऑफ 2023, एंड दिस टाइम इट्स द इवोल्यूशन इज सच रैपिड दैट कि आप अगर मिस कर गए आज के जनरेशन में एआई को अपने इकोसिस्टम में लाना, तो यू मिस मेनी स्टफ। इसलिए बहुत ज्यादा पैसे इस टेक्नोलॉजीज और इस तरफ लगाया जा रहा है। अब मैं इसको एक मैं डेमो जिसको हमने मतलब दिया था क्लाइंट को, मैं ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये है लैटरल इंसाइट फॉर, इसको हमने लाइव नाम दिया है, जो कि ऑलरेडी हमारा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हम उनके पार्टनर्स हैं फॉर डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ यूनिक मॉडल। ये किसी भी फिनटेक में लग जाएगा, किसी भी रिटेल में लग जाएगा, किसी भी गेम में लगेगा, किसी भी वीडियो बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगेगा। ये ऐसा मॉडल है जिससे कि व्यूअरशिप इंक्रीज हुई किसी न किसी वे से। हम एक यूज केस आपको बताएंगे इसमें।
ये इस टाइप के मॉडल पे हम काम करें, इसको हम लाइव बोलते हैं। लेटरल, लैटरल मीन्स जो कि लीनियर नहीं है, मतलब आप समझ सोच नहीं पाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दैट इज अ लैटरल थॉट। ओके, तो लैटरल वही है कि नॉन प्रिडिक्टिव, आप सब मतलब आपको पता नहीं है कि अगले बार में क्या मिलेगा, तो आप उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक पैटर्न ऑफ हर यूजर, जो कि हमने एग्जांपल जो अभी पहला पीओसी हम करें उनके साथ, तो हमने ओटीटी लिया है विच इज नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में हम लोग हर कोई देखते हैं, मूवी देखते हैं, टाइप ऑफ मूवी देखते हैं, तो उसके नॉन लीनियर पैटर्न को हम यूज करेंगे और उसके बेसिस पे हम एंगेजमेंट यूजर का बढ़ाएंगे। उससे आप पूछेंगे होगा क्या, क्या इससे फायदा क्या है। अब देखिए, वार्नर ब्रदर्स है या बड़े मूवी हाउसेस है, उनकी मूवीज उनको पुश करनी है, तो वो कैसे पुश कर पाएंगे, कुछ मेथड तो है नहीं, या तो आईएमडीबी में उसकी रेटिंग ज्यादा हो। आईएमडीबी, आपको जिनको नहीं पता होगा, रेटिंग इंजन है मूवीज की। तो जिनको अच्छी मूवी हो तो या तो वो पुश करा पाए, या कुछ ऐसा पुश कर पाए जो कि यूजर को इंट्रीग करे, यूजर को खींच के लाए। यू देखो और उसको सडन कुछ मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, रुपया मिल जाए, या सब्सक्रिप्शन मिल जाए, या मतलब अगर फिनेंस में है तो पैसे मिल जाए, विदाउट उनको देखना भी है, इंटरेस्ट भी बना दे रहा है। तो उस टाइप के एंगेजमेंट को अगर हम ला पाए एक प्लेटफॉर्म पे, वो AIML की ये लाइव हम बोल रहे हैं लैटरल इंसाइट, हम इसमें जनरेट कर रहे हैं। हमने इसमें यूज के सिनेरियोज नेटफ्लिक्स लिया था, क्योंकि नेटफ्लिक्स के IMDb डेटा पता है हमें, हमें वेटेज कुछ मिल जाता है नेट पे, बहुत सारी चीजें उसकी है, उसकी पैटर्न्स और व्यूइंग सिस्टम कुछ हमें इंसाइट मिल जाता है। इसलिए हमने इस POC के लिए OTT चूज किया था फॉर, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के डेटा, एक तो सिंथेसिस डेटा और रियल डेटा, दोनों का मिक्सचर है। सिंथेसिस डेटा के ड्रिवन पे आप वेटेज डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी यूजर के पैटर्न को आप इजिली क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हमने इसको इन्फ्रेंस जनरेट किया। तो देखिए, जैसे कि मूवी में हमें क्या क्या, मतलब IMDb से ये डेटा मिल गया जिसमें कि मूवी की रेटिंग क्या है, क्या सर्टिफिकेट है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड है, नॉन फैमिली ओरिएंटेड है, जेनरिक किस टाइप का है, हॉरर है, फैमिली ओरिएंटेड है, एक्शन है, डायरेक्टर्स किस टाइप के हैं, ईयर ऑफ रिलीज, और बहुत सारे डेटा जो कि ऑलरेडी IMDb देती है। IMDb जो कि मूवी की रेटिंग वेटिंग करती है। बी, हमने डेटा यूजर प्रोफाइल लिया। यूजर प्रोफाइल सिंथेटिक हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें अभी POC के लिए कुछ ही डेटा मिल पाता, क्योंकि ये एक्चुअल में जब हमको डेटा देगा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम ये भी रियल डेटा मिल जाएगा कि आप एक यूजर ने कितने बार लॉग इन किया, क्या देख रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस टाइप की मूवी देखता है, वो मूवी देखने के बाद उसकी व्यूअरशिप रैंकिंग क्या बढ़ती है, जो कि कुछ चीजें दिखाई जाएगी, कुछ चीजें नहीं दिखाई जाएगी। तीसरा है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव मतलब कि अगर लेट्स से वार्नर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, या रिलायंस मूवीज है, वो अगर अपनी मूवी प्लस आउट करने चाहे कि लोग ज्यादा देखें जिससे उसका एड एड रेवेन्यू बढ़े, कैसे कर पाएगा, लोग तो देखेंगे नहीं अगर। तो यहाँ फिर एक काइंड ऑफ लैटरल गेमिफिकेशन चलता है, जो कि आपको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं। ये रिवॉर्ड सिस्टम की एक फ्रेमवर्क हमने बनाई है जो कि बैक एंड पे काम करता है, और उसकी वेटेज डिपेंडिंग अपॉन जो भी मूवी OTT हाउस होगी या जो भी प्लेटफॉर्म होगा। तो इससे OTT हाउस को क्या फायदा है कि उसके लिए एक एंड कस्टमर खड़ा खड़ा है, जो कि जब चाहे बोलेगा कि मेरी मूवी, मेरे पास मेरी इस टाइप की मूवी नहीं बिक रही है, तुम थोड़ा बिकवा दो, यू टेक मनी फ्रॉम अस। तो वो वेटेज, तो वो उसका वेटेज बढ़ा देगा, उसके बेस पे उसकी मूवीज फ्लश आउट करवा देगा। और ये फ्लश आउट करने से लोग देखेंगे तो नहीं, वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग बना देगा। और उसको और यूजर को क्या फायदा होगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, या कुछ कूपन मिल जाएगा, और जो कि उसको पता नहीं क्या देखने से मिल रहा है। तो एक तरह से थोड़ा नशा भी डाल देगा, मतलब इट्स व्यूइंग, नॉन लीनियर पैटर्न व्यूइंग इज आल्सो काइंड ऑफ एडिक्शन। तो उस टाइप का उससे वो जनरेट कर पाएगा। तो और थर्ड प्रायोरिटी की हमने ये स्कीमा और ये सब IMDb से मिल गया। वेटेज हम ऐसे बना के बनाए कि वेटेज हर कोई डिफाइन कर पाए अपनी कंपनी के लिए, एक
फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म दे करके, जिसमें कि इस टाइप की मूवी का इतना वेटेज 20%, अगर कोई हॉरर के बाद एक क्राइम वाला देख रहा है तो 10, अगर वो लव में वाली मूवी देख रहा है तो 50, मतलब पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं वेटेज के हिसाब से। क्या इसमें हमने क्या क्या चीजें कंसिडर करी? डेली टास्क में रिपीटेटिव नेचर है क्या, बंदा एक तरह की मूवी देखता है क्या, या वीकली टास्क में क्या उसकी एक्टिविटीज किस तरह के, टाइम फ्रेम क्या है उस बंदे की डेली टास्क में, कितने देर वो मूवी देखता है, क्या वो लगातार 5-6 घंटे ओटीटी देखने लग जा रहा है या छोटी छोटी देर में दिख रहा है, क्या कंसिस्टेंसी है कि एक टाइप की मूवी वो देखे, कि फ्रीक्वेंट एंगेजमेंट क्या है उस मूवी में, वो कितना एंगेज रहता है, उसको कोई ग्रेटिफिकेशन उसकी क्या है, कि मैं इतना देख के कल देखूंगा, आगे देखूंगा, इतना आज देख रहा हूँ, या मेरी पैटर्न क्या है। सिमिलरली वीकली टास्क में हम उस कितना तरह की एक्टिविटीज देखता है, टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड कितना करता है, पर्सनलाइजेशन क्या है, लाइक मैं इस वीक देख लिया हूँ, अगले वीक नहीं देखूंगा, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, एंगेजमेंट बैलेंस क्या है उसका, और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट, तो ये हम मेजर करते हैं, ऑब्जेक्टिव हम मेजर करके इन्फ्लुएंस निकालेंगे। अब देखिए इसमें मोस्ट लाइकली दीज ऑब्जेक्टिव आर इनविजिबल टू द यूजर, तो यूजर को तो पता ही नहीं है, बैक सिर्फ अलगो को पता जो हम बना रहे हैं बैकएंड पे, तो उनको उनसे पता ही नहीं चलेगा, उसके बेस पे उनको उस टाइप की मूवी देखने को मिलेगी। तो ये मतलब ये सर्वर ये रिकमेंडेड इंजन है, मतलब आपको जिनको ज्यादा समझ में नहीं आए, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम एक हाई लेवल वर्क फ्लो बता रहे हैं कैसे हम क्या है। ये हमारा रिकमेंडेड अल्गो है जिसपे हम एल्गोरिथम बनाए हैं, जो कि मूवी सर्वर से इंटरेक्ट करता है। लिस्ट हमने डाला है इसमें IMDb से, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद यूजर के एंगेजमेंट पैटर्न हमने इसमें ऐड करवाए हैं, कि क्या देखता है, किस तरह से देखता है, क्या उसकी स्वैपिंग है, डेली वीकली पैटर्न क्या है, वेटेड डेटाबेस अगेन, कि हम किस तरह से उसको दिखाना चाह रहे हैं, हम अपनी चीजें कैसे दिखवाना उसको चाह रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो पैटर्न फिर डायनेमिक हो जाएगा, सेल्फ लर्निंग बेस्ड, ऑटोमेटिक नहीं हो, सेल्फ लर्निंग बेस्ड, वो देख लिया उसके बाद कुछ और दिखवाएगा उसको, उस टाइप के भी डायनेमिक ऑब्जेक्टिव जनरेट करता है, और वो फिर डेटाबेस में जाएगा और यूजर की बिहेवियर फिर रेट करेगा। दिस विल बी ऑटोमेटेड प्रोसेस विदाउट अ मैनुअल इंटरवेंशन। तो मतलब मॉडल इस तरह से हमने जनरेट, जो अभी AI मॉडल आपको एक स्निपेट दिखाऊंगा मैं, उसमें जो जो यूजर एक्टर इज अ यूजर, वो उसकी हिस्ट्री से कैसे हम उसका बिहेवियर लेते हैं, एंट्रोपी मतलब किस तरह की बिहेवियर पैटर्न हमने एज्यूम करा है, कि अगर 60% से ज्यादा अगर है तभी उसको हम यूज करेंगे, अगर बिहेवियर उसका जो एंट्रोपी है 60% से कम होगा तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे मॉडल में। तो इस टाइप में हमने, अब इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि किस तरह से हम जनरेट करें, बट ये हमारा वेक्टराइज फॉर्म है। मैं एक एग्जैक्ट मॉडल पे आपको ले जाता हूँ। ये है जैसे कि हमने इस दिया था, कैसे क्या उसने देखा था, पूरा मॉडल बना के हम लाइव डेमो हमने वीडियोस के करे थे, कितने किस टाइप के दिख रहा है उसके बेसिस पे उसका पैटर्न जनरेट किया था OTT पे। फिर रैंकिंग किया था पर्सन का, क्या रैंक्स है, ऑल्दो इट्स इज गेमिफिकेशन बट ये इंटरनल होगा, उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, बैचेस भी मिल रहे हैं, फ्री कूपन भी मिलेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब जो आपको मैंने वैसे ही बता ही दिया, कि VIP एक्सेस कहीं कहीं पे मिल जाएंगे, लीडर बोर्ड में पैसे मिलेंगे, मतलब इवेंट्स इवेंट्स हम इसको गेमिफिकेशन के थ्रू करा सकते हैं, ये भी नहीं। दिस इज अ काइंड ऑफ अल्गो स्निपेट्स। यहाँ देखिए आपको जो एंट्रोपी है 20 वेटेज है, 13 हमने डेविएशन पैरामीटर रखा है वॉच हिस्ट्री का। तो नीचे अगर इसको देखेंगे तो इसकी, पता नहीं नीचे दिख रहा है आपको क्या परसेंटेज, तो इसमें व्यूअरशिप हमने 3.57% इंक्रीज कर दिया। अगर हमने उसकी एंट्रोपी को हमने थोड़ा सा छोटा रखा, छोटे परव्यू ऑफ मूवी सेट को हमने पैरामीटर रैंडमाइजेशन को थोड़ा कम रखा, तो उसकी बिहेवियर जो है 3.5 सेकंड से इंक्रीज कर गई, विच इज अगेन हमने पुश कर दिया कि उसका वॉच टाइम बढ़ गया ना, वो देखता था फर्दर। अगर हम इसको ही और 20-20 ले जाते हैं, थोड़ा बढ़ा करके एंट्रोपी बढ़ाते हैं,
तो अब देखिए यहाँ पे इस इंजन में इसका जो इंक्रीमेंट वॉच टाइम है वो बढ़ गया 6% से। अगर और इसकी चीजें इंजन को और प्रोपेल करते हैं कि और फ्लश करो हमारे टाइप की मूवी देखने के लिए, 30 बार कर रहे हैं, देख रही है कि इसका 11% उसकी बिहेवियर बदल गई। और इंडस्ट्री लाइक नेटफ्लिक्स और एनी फिनेंस, इवन 1% कैन गिव देम अ जनरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ रेवेन्यूज। हाँ, तो मतलब 3 से 10% हमने जनरेट करके दिखा दिया था कि व्यूअरशिप आपके लिए आपके व्यूअर्स का बढ़ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअल अल्कोज स्निपेट्स जो हमने रन किया है। तो मोस्टली आई एम जस्ट गिविंग अ फेयर आइडिया कि ऐसे ही ये काम करता है मशीन लर्निंग जो है। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, लर्निंग में भी ये बहुत इजी है। थोड़ा सा पाइथन चाहिए आपको, मॉडल सीखना आर इज वेरी इजी, डेटा पैटर्न पे काम करता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। बट आपको मोस्टली ये समझ में रहना चाहिए कि क्या करना है, एंड रिजल्ट क्या है। जब तक आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम नहीं हो, मैं इसको अनशेयर कर रहा हूँ। जब बस आपको एक प्री डिफाइंड प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह की AIML मॉडलिंग लगेगी, वो समझने की जरूरत है। के बाद उसके बिहेवियर पैटर्न और डेटा सेट पे काम करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द मॉडल। मॉडल इज अ क्रिटिकल पार्ट एंड हाइपोथेसिस व्हिच इज एंट्रोपी। इनके एमलगेशन से आपको आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को आप वट एवर वेरियस मॉडल में आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। अब जनरेटिव AI का भी एक पर्सपेक्टिव आ गया है। अब जनरेटिव Can I AI क्या question? है? Can I ask the question now? या जैसे मेरा क्वेश्चन है जो आपने POC दिखाया है, तो हाँ टुडे आज तो सारे OTT में आई बिलीव सो इवन इंक्लूडिंग यूट्यूब हमें हाँ हाँ रिकमेंडेशन दी है बेस्ड ऑन जो हम लाइक हाँ, करते देखिए हैं। वही वही मैं बता रहा हूँ, वो दैट्स अ गेमिफिकेशन। आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। गेमिफिकेशन जो होता है ना, आप उनको पता है कि आप ये कर रहे हैं तो मैं यही दूंगा। आपके चाहत ना चाहत से फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपको पुश नहीं कर सकते, इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते। तो वो गेमिफिकेशन हो गया। मतलब दैट्स अ रूल बेस्ड। में भी AI है, बट दैट्स अ प्राइमरली रूल बेस्ड, कि इसके इतने हिट हो गए, ये वीडियो फ्लश कर दो, या ये इस टाइप के वीडियो डाल दो। तो उनको पता है, मतलब उनको भी एक तरह से AI तो लगा ही रहे हैं, बट मोस्टली गेमिफिकेशन ड्रिवन, कि इस टाइप का आपको ये नहीं। अगर इसमें क्या होगा, आप हॉरर देख रहे हैं, आपको बताएगा कि अगर आपने स्विच मार दिया इंटरेस्ट करके एक्शन थ्रिलर्स या कुछ और में, जो कि आपको पता नहीं है, वहां वहां पे है कि अगर आप लेट्स से कि एक्शन मूवी देख रहे हैं तो यूट्यूब दोबारा एक्शन मूवी दिखाएगा, उसी तरह का पैटर्न ले जाएगा। यहाँ पे पैटर्न डिफाइन नहीं, तो वहां क्या है, गेमिफिकेशन, लीनियर गेमिफिकेशन हो। यहाँ लैटरल गेमिफिकेशन, आपको वो पैटर्न पता नहीं है, नहीं पता है, और तब आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंस। एक लैटरल सोच, मतलब वो नॉन प्रिडिक्टिव है कि अब क्या दे देगा, क्योंकि वो ड्रिवन है कि बिजनेस से। यहाँ है कि मैं उसी तरह, क्योंकि इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसी में और दिखाते चले जाओ, और ऑप्शन देते चले जाओ, और ऑप्शन देते चले, राइट। तो वो आपको थोड़ा समझना। बट वेरी गुड क्वेश्चन है आपने, बहुत अच्छा लगा। और कुछ है क्या? मैं बता रहा था जनरेटिव AI का। हम एक और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेज है, विच इज इंश्योरेंस। मैं इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सोचिए उस तरह से कि क्या क्या प्रॉब्लम मार्केट में है, क्या अपन चूज कर सकते हैं उसको नेक्स्ट लेवल तरीके से। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं, शायद ये खत्म हो रहा है क्या, सॉरी। तो दूसरा जो हम कर रहे हैं, जनरेटिव AI ड्रिवन। जनरेटिव AI क्या है कि आपके, मतलब इस काइंड ऑफ प्रिडिक्टिव, जो आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो जनरेट करके इन्फ्लुएंस ला रहा है। अब इसका यूज कर, टिपिकली अभी यूज हो रहा है लीनियर यूसेज। अब इसका लैटरल यूसेज कैसे करें? तो अब मैं, हम जिस पे काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस, लेट्स से हेल्थ केयर इंश्योरेंस। हेल्थ केयर में कोई, हर कोई जाता है डॉक्टर के पास, मान ली इन पेशेंट कोई जा रहा है, तो उसको सेट ऑफ दवाई मिलती है, उसके बेसिस पे वो ठीक होता है। तो फिर दवाई मिलता है, रिलीज होता है, फिर दवाई ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर फिर डिस्क्राइब करता है, और उसके बेसिस पे
उसको एक बिल जनरेट हो जाता है। अगर वो इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्चुअरियल्स के पास जाते हैं देखने के लिए क्या वैलिड क्लेम है, उसके बेस पे जो भी आपने इंश्योरेंस ले रखी पेमेंट आ जाती है। लेकिन अब यहाँ चैलेंजेस है। क्या चैलेंज है कि हर हॉस्पिटल का सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग हो जा रहा है, दवाइयाँ अलग अलग हो जा रहा है। अपोलो 2 लाख का बिल बैठा दे रहा है और PMCH या कोई और दरभंगा मेडिकल कॉलेज उसका 50,000 का ही बिल आ रहा है। पेशेंट वही, सिमिलर कंडीशन वही, कैसे बचाया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी का बिल? ये यूजर के लिए नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बना रहे हैं थोड़ा सा। तो इससे क्या है कि अगर कोई पेशेंट इस टाइप के प्रॉब्लम से जा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ डेटा है इंश्योरेंस कंपनी के पास की हेल्थ केयर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैसा रिलीज कर रखा है पहले भी, जितने भी इन पेशेंट आते हैं उनके इंश्योरेंस के बेसिस पे पेमेंट प्रीमियम कर रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर्स ने क्या सही ट्रीटमेंट करा है या ओवर ट्रीटमेंट तो नहीं कर रखा है पैसे बनाने के लिए, अब ये इंजन जो है ये बताए कि अननेसेसरी टेस्ट लिख देते हैं, क्या जरूरत है? उनके पास अब डेटा है, उसको यूज करके हम बताएंगे कि यार ये टेस्ट फालतू का है, इसकी पेमेंट मत करो, ये हॉस्पिटल ने डाल दिया, ये एक्स्ट्रा मेडिसिन है, इसकी जरूरत नहीं है, पेशेंट तब भी ठीक हो सकता है। और वो पैटर्न बताते चले जाए और वो कंपेयर करेगा हर दिन की, आज जो एडमिट हुआ है उसके सिमिलर ओकेशन के बेसिस पे मेडिकल हिस्ट्री विथ मेडिसिन हिस्ट्री विथ बहुत डेटा जनरेट होकर वो पैटर्न जनरेट करेगा। अब वो देखेगा डॉक्टर से क्या कंपैरिजन मिलता जा रहा है, कितना डेविएशन है। अब जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है तो उसमें एक थ्रेशोल्ड इज अ वेरी की फैक्टर। कितने एक्यूरेसी थ्रेशोल्ड पे आप इसको ट्रुथ मान, 60 से नीचे इज ऑल फॉल्स, हम जाते ही नहीं है। 80+ इज वेरी गुड, 80+ अगर आपको एक्यूरेसी अचीव हो गई है इट मीन्स वेरी गुड। तो मोस्टली कि आप 80+ ही जाते हैं, 80+ से जाना बहुत और टफ पड़ जाता है। बट 80+ अगर एक्यूरेसी मिल रही है तो अगर कुछ पैटर्न में 80+% या जो भी डिफाइंड है, अगर डेविएशन ज्यादा आ रहा है देन दे कैन क्लेम डॉक्टर्स हॉस्पिटल कि यार ओवर हो रहा है या ये गलत है। नहीं, क्योंकि हमारे पास 10,000 पेशेंट्स हैं, सिमिलर टाइप के पैटर्न मिल रहे हैं जो आपने दिया है, और आप उसके एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा टेस्ट दे रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं। वो उसको बना के जनरेटिव AI के बेस पे प्रिस्क्रिप्शंस और उसकी बिलिंग बन रही है, एंड देन दे कैन इंश्योरेंस कंपनी कैन कंपेयर एंड देन वो उसको नॉर्मलाइज कर पाए। तो अगर उनका 1% भी ये 300-400 बिलियन रेवेन्यू है वर्ल्ड वाइड, मतलब आप डॉलर में आप समझिए 1% भी अगर सेव हो गया तो कितना इंश्योरेंस कंपनी का पैसा। सो आप, मैं कहने का मतलब है आप यूज केस समझिए, आपके इन्वायरमेंट में ही बहुत सारे यूज केस मिल जाएंगे, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम पूरा समझ के टेबल पे ले आएंगे तब आप काम करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड रिजल्ट। तो उस हिसाब से अपन अगर लेवरेज करें इसको तो आपको रिजल्ट। डाटा मिलेगा कैसे? सर ये एक्चुअल डाटा मिलेगा कैसे, राइट डाटा मार्केट से? देखिए सर, डेटा बहुत चीजें तो आपको नेट पे ही मिल जाएगा, लेकिन आप POC लेवल पे भी आप जनरेट करके भी डेटा कर लेंगे तो आपको, तो आप टाई अप करेंगे, आप दिखाएंगे रिजल्ट ना, तो टाई अप करने के लिए आपके पास कंपनी आ जाएगी। अगर उनको दिखेगा फायदा है, पहले तो आपको एक प्रूव करना पड़ेगा कि आपके सॉल्यूशन है कि नहीं। कुछ आप जैसे आप मेडिकल वाला है तो हम जनरेट करवाए, डॉक्टर्स के पास जाकर कुछ डेटा ले पाए, कुछ डेटा वो हेल्थ, अगर आप जिसके लिए काम करोगे, आपने एक POC दिखा दिया कि इससे ये हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपने 2-3 पैटर्न प्रूफ करके दिखा दिए, तो फिर वो रियल डेटा विथ NDAs एंड वेरियस अदर, तब आप उस पे खेलिए। खेलना तो एक्चुअल डेटा पे, ये सब तभी सही निकलेगा जब तक एक्चुअल डेटा आपके पास नहीं है, और वो एक्चुअल के लिए आपको एजेंसी से टाई अप करना। बट मॉडलिंग और इनिशियल प्रिपरेटरी वर्क इज नीडेड एट फर्स्ट इंस्टेंस। इधर हम डेटा पे काम कर रहे हैं, कॉमर्स पोर्टल में B2B में। मेरे पास B2C का डेटा आ गया, जैसे पढ़ना मेरे पास 10 लाख डेटा आया, तो हम लोग 20% करके माइनस कर दिए। फिर भी वो डेटा एक्चुअली जो जिसने जैसे जस्ट जहाँ से डाटा आया अभी कहीं से भी, जो भी कुछ कंपनियां हैं हैक करके देख कर जहाँ से लाया उठा के वो लाया उनके पास दिया। लेकिन फिर भी वो डाटा में मुझे कुछ लोगों को मैंने कॉल किया, लेकिन वो एक्चुअल डाटा ही नहीं आ रहा है। नहीं, आपका जैसे मैं यूज केस क्या है उससे?
इस केस मैंने यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कि पटना के, खास कर पटना सिटी के 30 एज के बंदे ऑनलाइन मैंने खाने की पदार्थ या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदता है, किस टाइप का खरीदता है, उसके यही सब डेटा में बहुत सारे मैंने 1 महीना से मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, खास कर डेटा पर। हाँ देखिए सर, आपको ये मतलब वही ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है टू बी फ्रैंक, इसमें आपको डेटा ज्यादा मिले, बट बहुत सारे रेस्टोरेंट के पास अब पैटर्न मिलता है, लेकिन तब भी वो पर्सनलाइज डेटा रखते नहीं। तो आपको सर्वे ही एक मीडियम बचता है जिससे आप इसको रियल डेटा में कन्वर्ट, क्योंकि ये फूड एंड एग्रीकल्चर आप बिल ही पे काम करते हैं, ना कि पर्सन पे काम B2C का मैंने डेटा सही दी थी कल, करते हैं। हाँ B2B हमको सही से नहीं पता, लेकिन B2C जो मैंने पटना का एक लोगों को मैंने डेटा निकाला हूँ, हाँ, जो खास के फ्लिपकार्ट से अपना सामान खरीदते हैं, चाहे अमेजन से खरीदते हैं, या हाँ हाँ, खरीदते हैं, मेरा सही डेटा निकल गया, क्योंकि उससे भी लोग फैशन से लेकर खाने पीने की पदार्थ खरीदती है, करेक्ट करेक्ट। चाहे चाहे वो बने 18 ईयर के बंदे हो या 16 के बंदे हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो। जैसे मैंने फैशन में देखा हूँ, खास में खास की पटना के 2-3 कॉलेज को निकाल के देखा हूँ, महीने का मुझे लग रहा है एक कॉलेज में 2-3 कॉलेज जाके 4 से 5 लाख का ऑर्डर हर महीने में निकाल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हुआ, ये लोग कोई डिलीवरी करता है। इस डेटा के माध्यम से हमको कुछ ऐसा डेटा निकल के आया कि मैं फूड इंडस्ट्री में चाहता हूँ कुछ अलग ही इस टाइप का ना डिलीवरी करूँ। एक्चुअल डेटा हम B2C का निकल गया, लेकिन B2B काम का नहीं निकल रहा है। सर उसके यूज केस पे एक POC पे काम करना पड़ेगा, मतलब ट्रिवियल है, नॉट लीनियर है। जब तक डेटा ही तक गेम है ये, अगर आपको डेटा नहीं मिलेगा, फास्ट डेटा से कोई रिजल्ट नहीं आता है। बिना मतलब कुड बी अ मीडियम, वुड बी अ सर्वे, आपको कुछ डेटा सर्वे से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप की पैटर्न तभी आपने या तो अमेजोन या कोई और दे, बिना डेटा के तो रियल डेटा के आप इस पे नहीं कर पाएंगे ज्यादा। आपने सही बात बोला, इसलिए डेटा मैंने मतलब देखिए, बहुत जगह होता है, इवन आपको डेटा जनरेट करवाना पड़ता है। यूं तो आप पैटर्न ड्रिवन कुछ डेटा जनरेट भी कर सकते हैं, या जैसे कि जितने भी एग्जीबिशन या बच्चों कॉलेजेस में कुछ इवेंट्स या कुछ वैसे लगते हैं, आप कुछ रिवॉर्ड बेसिस पे सर्वे करा कर कुछ पैटर्न, तो ये देखिए आपको स्टैटिक्स में ना एक सिमिलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेटा डिफाइन करके अगर डेटा मिल जाए ना, तो वो लार्जर ऑडियंस पे मोस्टली सही चलता है। स्ट्रेटा के लिए 40 सैंपल, एक ग्रुप में 40 बेयर मिनिमम सिमिलर टाइप ऑफ सैंपल्स। अगर आप ऐसे सैंपल्स कुछ कॉलेजेस के स्ट्रेटा डिफाइन कर ले, के बेस पे आप पॉपुलेशन बना सकते हैं, फिर आप इन्फ्लुएंस करके आप उसके केस, हम उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ उसी पे आप देखिए स्टैटिस्टिकली बहुत सारे मॉडल है, जब आप स्ट्रेटा ड्रिवन डेटा आ जाता है ना, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन जनरेट, जो कि 70 से 90% एक्यूरेट देता है। अगर आपका डेमोग्राफिक आपने सही से निकालना है, तो आपको उसमें मिल जाएगा। आपको तो पैटर्न चाहिए, आपको तो एग्जैक्ट चाहिए नहीं कि ये एग्जैक्ट वाला कि नहीं, इस तरह की खाद्य पदार्थ में उनका इंटरेस्ट है या वैसे, आपको पैटर्न चाहिए, तो मैं उस टाइप का बिजनेस करूंगा, राइट। जो बिहेवियर पकड़ना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, कुछ और है क्वेश्चंस कि नहीं पे? Any more questions, if any, online? Anyone can ask question online? यहाँ पे है कोई क्वेश्चन पूछने वाला? So I guess we don't have any further questions. ठीक है, थैंक यू। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव, एटलीस्ट इनिशियल लेवल ऑफ Sir, बहुत one thing, एक्सप्लेनेटरी है। sir, one last thing. हाँ I am working on a product which is obviously related to artificial intelligence. हाँ हाँ So I would like to talk to you about the product and demonstrate it and see the next route of it, कि how to take it further, क्योंकि आपने तो एक POC दिखाया, दूसरा POC पे आप काम कर रहे हो, जो similar to what I am doing actually, not from the project perspective, from the idea perspective, like the intelligence of the artificial brain. So आपको reach out करने के लिए your email or can we get something sir, क्योंकि मैं डेमो हाँ देखना चाहता हूँ आपको। हाँ, आप राजीव जी से कनेक्ट कर लीजिएगा, उससे उनसे आपको ईमेल दे देंगे, हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं Okay, sir, thank you so much. ओके, बहुत लंबा